Hey guys, welcome back to KBIM classes. Today we are going to study about Gregor Johann Mendel's history के बारे में. Okay students, when most people think about DNA and their history, the name of Boston and Crick comes to the mind. But before the DNA even existed, there were scientists who were studying the inheritance of traits. One such scientist is Gregor Johann Mendel. He is the father of genetics because he was first to demonstrate the mechanism of inheritance. He was born in 22 July 1822 in Bern City, Austria. He was a brilliant student and belongs to a poor family. He studied philosophy for several years. After his schooling, Mendel joined an Augustinian monastery of St. Thomas at Bern City, Austria. He was made a priest in the monastery. In 1851, Mendel was sent to University of Vienna for study of botany and physics. He returned to Bern as a teacher of physics and natural sciences. Mendel was interested in hybridization, so Mendel carried out hybridization experiments on garden pea for 7 years, from 1856 to 1863. In 1865, his paper, Experiments on Plant Hybridization, was published in the journal. The name of the journal was Annual Proceeding of Bern Natural Science Society, and his paper was published in 1866. Title of Mendel's paper, Experiments in Plant Hybridization, is the English translation. The paper was in German language, so title was also in German language. After that, Mendel died in 1884 without getting any recognition for his work. After 36 years, Mendel's work rediscovered by 3 scientists. First, Hugo de Vries, Carl Correns and Eric von Tischermack. ये तीनों ही साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किए थे मेंडल के पोस्टुलेट्स in 1900. In 1900, Mendel's postulates were rediscovered by these 3 scientists. So, Hugo de Vries ने 1901 में Mendel's results are republished in Flora. So, ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में मेंडल्स के जितने भी रिजल्ट्स थे जो उन्होंने एक लोकल और बर्न सिटी के ही जर्नल में उन्होंने पब्लिश किए थे, वहाँ से उस पेपर को इन्होंने फ्लोरा जर्नल में पब्लिश किया, जिसके व्यूअर्स थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में थे, जिससे जो उनकी स्टडीज थी वो बहुत सारे लोगों तक पहुंची. कार्ल कोरेंस ने जो मेंडल्स के कंक्लूजन्स थे उनको लॉ में कन्वर्ट किया, एंड एरिक वोन टीशरमैक, वो भी बर्न सिटी से बिलोंग करते थे, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्टेड थे, तो उनके रीडिस्कवरी में उनका भी रोल है. आफ्टर दैट देयर आर सम रीजंस कि वो क्यों बहुत लंबे टाइम तक हिडन रहे फॉर 36 years. First, communication was not easy in old time. So, at that time बहुत सारे errors होते थे communications के बीच, जिसकी वजह से communication easy नहीं था.
उनका जो एक पेपर था जो उन्होंने पब्लिश किया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे पब्लिकेशन में और अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनके वर्क के बारे में पता ही नहीं था. आफ्टर दैट his work was ahead of time. At that time, people was not ready to accept Mendel's work. They believe कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फादर और मदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मिक्स हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में. तो दे बिलीव इन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. जिस his work was ahead of time. After that, Mendel was insecure of his work, and at that time, popularity of Darwin's work. डार्विन्स के वर्क की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से वो भी एक रीज़न बना कि मेंडल का जो हिस्ट्री थी, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मेंडल के जो रिसर्च थी, वो काफ़ी लंबे टाइम तक हिडन रही. एंड मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से उनके उन रिजल्ट्स को समझने में काफ़ी दिक्कतें सामने आई. जिसकी and last reason, he was unable to provide physical proof for factor. Factor is gene. जब मेंडल ने इनहेरिटेंस की स्टडी करी तो जीन को उन्होंने फैक्टर बोला था, उन्हें नहीं पता था कि ये जीन है. एट दैट टाइम मेंडल बिलीव करते थे कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, उनको पास करने के लिए एक यूनिट रिस्पॉन्सिबल है, और वो यूनिट कैसी यूनिट है? स्टेबल यूनिट है, जो कि जब दोनों पेरेंट्स अपने कैरेक्टर्स को पास करते हैं इन देयर नेक्स्ट जनरेशन, तो वो फैक्टर्स, वो स्टेबल यूनिट्स मिक्स नहीं होती. लेकिन उस टाइम पर वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे जीन का. उस टाइम पर डीएनए भी नहीं था. सो स्टूडेंट, देयर आर सम रीजंस कि मेंडल्स वर्क को इतनी सक्सेस कैसे मिली. बिकॉज ही सेलेक्ट द प्लांट पाइसम सैटिवा, मींस पी प्लांट. उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया एंड उन्होंने एक टाइम पर एक कैरेक्टर और एक से कई ज्यादा कैरेक्टर्स को साथ में लेकर स्टडी की थी. उन्होंने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी एट अ टाइम की थी स्टूडेंट. एंड उन्होंने अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का यूज किया था. वो भी एक रीजन बना उनकी सक्सेस का, बिकॉज रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का उन्होंने यूज किया. उससे उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करना इजी हो गया. एंड देयर आर सम रीजंस कि उन्होंने गार्डन पी ही क्यों चूज किया. बिकॉज उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, 2 to 3 मंथ में पी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है. अब 1 ईयर में एटलीस्ट 3 टाइम्स आप प्लांट को ग्रो करा सकते हो. आफ्टर दैट पी प्लांट लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है. पी प्लांट हैव मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. अगर आप 2 प्लांट्स को एक साथ देखोगे तो उनके जो डिफरेंसेस हैं, जैसे फ्लावर कलर, एक का वॉयलेट होता है, एक का वाइट होता है. एक प्लांट हाइट में टॉल होता है, एक डॉर्फ होता है. पॉट कलर्स डिफरेंट होते हैं. एक का पॉट शेप इन्फ्लेटेड होता है, एक का कंस्ट्रक्टेड होता है. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो. पी प्लांट नेचर में बाइसेक्सुअल होता है. अगर आप उस प्लांट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है. एंड आर्टिफिशियल हार्बोराइजेशन इजी होता है पी प्लांट में. सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स वर्क. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.